Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. How it is defined, how it works, look at here now. Let M is a fixed natural number. Natural number. M is a fixed natural number. ये पहले फिक्स कर लेते हैं. If you change M, relation will change. पहले हमने क्या किया? M फिक्स कर लिया. Let M is a fixed natural number. Define a relation R on Z as that AB belongs to Z, then A to B if M divides A minus B. That is, A minus B is multiple of M. That is, when we divide A minus B by M, remainder is 0. जैसे भी फील हो रहा हो, ठीक है. M divides A minus B. It is not M upon A minus B. M divides A minus B. That is, A minus B is multiple of M. Or when we divide M minus A minus B by M, remainder is 0. That is the concept of multiple होना. And then we denote it by A congruent B modulo M. जैसे बचपन में पहली बार कभी ये सिंबल जब देखा होगा फर्स्ट टाइम, इट मीन्स व्हाट? इट गिव्स यू मैसेज ना, A is less than or equal to B. आप पता है, आप ये साइन लगा सकते हो. आपको खुद फील हो रहा है ना, सर दिस इज रॉन्ग, 5 is not less than. Similarly, when you write this, when you know M divides A minus B, for example 5 is congruent to 3 modulo 2 लिख सकते हो आप, करेक्ट. 5 is congruent to minus 3 modulo 2, है ना, करेक्ट. 5 minus 3 8, and 8 is multiple of 2. 10 congruent 1 modulo 9. 10 congruent minus 1 modulo 9. 11 कर सकते हो ये. That is the meaning of this symbol. A is congruent to B modulo M means what? Whenever it is written, that is M divides A minus B. If it doesn't divide, that equation is wrong. Called congruence equation. This is called congruence equation. ठीक. Relation define किया. Very special relation. This is the concept, and these are certain examples. Now you say this is equivalence relation. Result: congruence modulo by M over Z is equivalence relation. Result: this is an equivalence relation. Congruence modulo by any M over Z is equivalence relation. Congruence modulo by any M. M belongs to natural number. M belongs to natural number. जिससे हम डिवाइड करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होता, वो जीरो भी नहीं होता, ठीक है. M belongs to natural number, but in relation is over Z. Relation is over Z. So the relation of congruence modulo by any M is equivalence over Z. क्यों इक्विवेलेंस है? प्रूव कर सकते बड़े आराम से. 3 में किया था आपने, सेम रूल आ जाएगा, है ना. जो आपका RST है, reflexive symmetry and transitive, so we can easily verify na A rate to A, A is congruent to A modulo M. For all A होता ही होता है, और फिर A R B implies B R A. Why so? As
इफ m डिवाइड्स a माइनस बी इंप्लाइज m डिवाइड्स b माइनस a। और थर्ड t जो आपका है कि अगर m a माइनस b को डिवाइड करेगा एंड m डिवाइड्स b माइनस c, दिस इंप्लाइज m डिवाइड देयर सम एज वेल। तो a काउंट b मॉडुलो m, b काउंट c मॉडुलो m इंप्लाइज a काउंट c मॉडुलो m। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना? सो दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन, हेंस partition, hence it will partition। and how it partitions, कैसे करता है partition? क्लासेस इकट्ठी करते हैं। what is partitioning? we take one element and form its class, then we take another element out of that class, because वो अगर क्लास से लोगे फिर से वही क्लास आ जाएगी, and then another class and so on। when the set exhausts we say it is partition now। तो हम जीरो लिया, क्लास ऑफ जीरो में कौन आएगा? वो आएंगे जो रिश्तेदार हैं, जो कॉन्ग्रुएंट हैं, जिनको m डिवाइड x माइनस जीरो। तो क्या आ जाएंगे? सारे m के मल्टीपल, 0 m 2m एंड सो ऑन, माइनस m माइनस 2m। है ना? यही से मिल जाता है कि कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, कब क्लास ढूंढ पाएंगे? अभी आप तरीके ढूंढते कैसे क्लास बनाते हैं, एक और रिजल्ट बनाते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं ना? very very important relation। now suppose we want to find which two integers are congruent to each other। अब तो बोल सकता हूं each other because it is symmetric। अगर a b के congruent है तो b b a के congruent है। so now we want to find which two are congruent to each other modulo some given m। ये तो ढूंढना है कि ये रिश्तेदार है या नहीं है। then only we will be able to find classes, subsets which are disjoint। सब ये सब तो होगा ना, पता तो चले कौन किसका रिश्तेदार है। so look at here, let a is congruent to b modulo m। देखें क्या है ये। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. It means what? a minus b is multiple of m for k belong to z। z नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है, m नेचुरल नंबर होगा। ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, a अगर छोटा हुआ b से तो। सो दिस इज ऑल ऑफ द फॉर्म m into k। दिस implies and implied by, implies and implied by। now let us divide a and b separately। if I divide a minus b by m, what is remainder? 0। but if I divide a and b separately, remainder need not to be 0। but by division algorithm, now division algorithm on a and b belongs to z। division algorithm on a and b by on z। how? a is m q1 plus r, r1। what is r1? a को हमने m से डिवाइड किया, कुछ क्वोशिएंट कुछ रिमाइंडर। b को करो, कोई एक छोटा कोई एक बड़ा। अच्छा, a माइनस बी एंड b माइनस ए ऑल्सो। हाँ, दोनों ही तो मल्टीपल होंगे। यहां से a माइनस बी, हमने कोई एक बड़ा ले लिया। लेट r1 इज ग्रेटर देन r2 प्लस r1 माइनस r2। ठीक है, ये आएगा a माइनस बी। ठीक, इट मीन्स वॉट? एंड r1 माइनस
R2 is less than M and get equal to 0. हमने R1 बड़ा ले लिया ना, ये बिटवीन 0 M, ये बिटवीन 0 M सेपरेट करोगे तो फिर वो M से बड़ा तो नहीं हो सकता ना. दो नंबर 1 to 10 के बीच, 0 to 10 के बीच में है, उनका डिफरेंस क्या होगा? 10 से बड़ा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना. बट नाउ M divides A minus B if and only if R1 minus R2 is 0. क्योंकि अगर ये M का मल्टीपल है, ये ऑलरेडी M का मल्टीपल है, इसको भी M का मल्टीपल होना पड़ेगा. और वो एक ही तरीका हो सकता है कि 0 हो और फिर नहीं तो फिर M हो या माइनस M हो, दोनों पॉसिबल नहीं है. क्या होना होगा? एंड दिस इंप्लाइज R1 इक्वल टू R2. इससे एक बड़ा रिजल्ट हाथ आया. छोटी सी चीज है बट रिजल्ट बहुत बड़ा है कि व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स बाय सम M से, then they are congruent to each other if and only if they leave the same remainder. अगर हम कोई दो नंबर्स को M से डिवाइड करेंगे and they want to be congruent, the remainder has to be same. If and only if. अब आसान हो गया. Divide 12 by 5. What is remainder? 2. 22 by 5. So they are congruent because they leave the same remainder. Two integers are congruent to each other modulo M if and only if when they leave the same remainder when divided by M separately. This line implies, जो नोट लगा सकते हो hence जो आया कि A is congruent to B modulo M, नोटेशन में लिखिए इसको. A is congruent to B modulo M if and only if. A is congruent to B modulo M if and only if they leave the same remainder. If and only if A and B, not they. A is congruent to B modulo M if and only if A and B leave the same remainder when divided by M. ठीक है. इससे आपको यह भी ज्ञान मिल, रिमाइंडर 0 और M-1 की M-1 तक हो सकता है. आप अब -2 को 3 से डिवाइड करो, व्हाट इज रिमाइंडर? अच्छा 2 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ना. 2 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा. किसी भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर को किसी M से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर M से बड़ा हो नहीं सकता, M भी नहीं हो सकता. वो 0 से M1 तक होता है. अगर वो छोटा है जिसको डिवाइड कर रहे हो तो वही रिमाइंडर बन जाता है. नहीं, बट नेगेटिव में कैसे करते हो? अगर -2 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आ जाएगा. क्योंकि जो 3 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है और 3 और -2 कॉन्ग्रुएंट है. -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 5 की नहीं. तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही आना चाहिए जो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है. इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? अगर -2 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर वही आएगा जो 3 को डिवाइड करोगे. 3 को डिवाइड करो 5 से रिमाइंडर क्या आता है? 3. तो -2 को डिवाइड करने पे अगर 5 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए. तो नेगेटिव नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर ऐसे निकाला जाता है. अगर आप -1 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आएगा. बिकॉज -1 एंड 9 रिमाइंडर हमेशा 0 से 9 के बीच में ही होगा. रिमाइंडर जिससे डिवाइड करते हो उससे बड़ा हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता. इफ यू डिवाइड अ नंबर बाय 20, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? 0 to 19. इफ यू डिवाइड -3 बाय 20, तो यू हैव टू फाइंड नंबर बिटवीन 0 to 19 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -3, दैट इज 17 ओनली. तो रिमाइंडर इज 17. गॉट द आइडिया? ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? व्हाट डू यू मीन पक्का? हाँ, श्योर. There was an English couple who was learning Hindi. English couple, they were learning Hindi सीखने लगे. And what they did? They hired a cook from India. उससे हिंदी में बात करेंगे, सीख जाएंगे हिंदी. And once they were fighting over one single word,
हस्बैंड सेज हिंदी में, पानी उबल रहा है. नो वाइफ सेड नो, इट इज रॉन्ग, पानी खौल रहा है. एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग. तो कुक को बुलाया. Hey, what do you call this? उबल रहा है या खौल रहा है? Said boiled water, sir. Simple. We call it boiled water. We don't call it उबलता पानी और खौलता पानी. We say it is boiled water. Sometime, so it is bar of language. तो जो आपको समझ में आए वो बेटर है, ठीक है. जो आपको समझ में आ रहा है वो that is the final. But that should be accurate. Its implication should be fine enough. वो P implies Q वाला मामला होना चाहिए. It should be sufficient to answer, not necessary. When you answer something, you always answer with the help of sufficient condition, not necessary condition. Means if you want to claim continuity, differentiability can help you because it is sufficient for continuity. But if you want to claim differentiability, continuity is not going to help you because it is necessary, not sufficient. ये सीखना होगा आपको how you answer. दोनों चीजें आपकी पैरेलल चल रही हैं. You need to learn good mathematics. वो बहुत जरूरी है. सारा कुछ हवा में निकल जाएगा नहीं तो फिर 10 साल बाद आपकी डिग्री ढूंढी जाएगी स्मृति ईरानी टाइप का कि यार आप एमएससी करके आए हो, नेट जेआरएफ भी है, उसके बाद भी 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/x स्क्वायर का log x स्क्वायर. ये गड़बड़ कैसे हो रही है? मतलब क्या किया था आपने? वुड यू बिलीव दिस आई हैव सीन इन डेमो. दिस आई हैव सीन इन डेमो फॉर टीच रिक्रूटमेंट. मैं कहीं इन्वाइटेड था कि सर आप भी आ जाओ, मैथ्स में डेमो चल रहा है जेई के लिए. उसमें एक बच्चे ने लॉजिक दे दिया था, बच्चे ने समझो वुड बी फैकल्टी. मैंने कहा प्रभु धन्य है आप, आपके तो पैर पकड़ लेने चाहिए. आप जैसे लोग मैथ्स में हैं और मास्टर तक करके आए हैं. 12th हुआ, बीएससी हुआ, एमएससी हुआ. अनदर समटाइम आई वाज कॉल्ड इन फिजिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, फिजिक्स डेमो लेक्चर. आई सेड व्हाट आई विल डू देयर? सर यू हैव गॉन थ्रू फिजिक्स. मेरा फिजिक्स ठीक ठाक रहा है. आई हैव गॉन थ्रू कंप्लीट लेक्चर बाय फिनमैन, 3 वॉल्यूम्स. रिचर्ड फिनमैन ना लेक्चर्स इन फिजिक्स करके आता है. वेरी वेरी. कभी मैथ्स लिखने का मन हो ना तो इसको पढ़ना, हाउ टू राइट गुड मैथमेटिक्स बट थ्रू फिजिक्स. रिचर्ड फिनमैन द ग्रेट फिजिसिस्ट, उनके 3 वॉल्यूम आते हैं लेक्चर्स बाय फिनमैन 1 2 3. और भी होंगे, मैंने 3 पढ़े थे, देखे थे. तब समझ में आई फिजिक्स होती क्या है. और वो भी खाम खाए बीएससी करने के बाद आई तैयारी के टाइम पे. तो आई वॉज देयर फॉर फिजिक्स डेमो. आई आस्क्ड सिंपल क्वेश्चन, ओके डेमोन्स्ट्रेट मी द डे एंड नाइट फिनोमेना. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Demonstrate how. Okay, he started explaining. See, this is earth, okay, this is sun. मैंने कि तुम कहां से देख रहे हो भाई? How you can demonstrate now? जैसे उसने बताया सारे लोग और भी जो बैठे थे वो भी हंसने लगे. भाई ये अर्थ है तुम्हारा, ये सन है. अरे साइज के हिसाब तो कुछ बेसिक चीज तो रखो ना, डायमेंशन का दिमाग में रखो कि अर्थ से कितना बड़ा है सन. अगर तुम ये करोगे तो छुपा भी नहीं सकते फिर तो तुम. हाँ भाई, अगर डे नाइट फिनोमेना तो कैसे आएगा समझ में? ये तो पूरा सुपर इम्पोज कर लेगा ना उसको. तो द प्रॉब्लम वॉज द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, छोटी छोटी चीजें हैं. एज अ टीचर यू नीड टू केयर ऑफ. हमको थोड़ी फर्क पड़ने वाला हो, क्या मालूम कौन बच्चा दुखी कर दे. आप एक डेमो में एक लड़के ने बताया हमको, हमारे यहां क्लास चल रही थी और ही वॉज केमिस्ट्री फैकल्टी. आपको याद हो अगर अर्लियर इट वॉज 5 टॉपिक इन जनरल, नाउ इट इज जीएमए सेक्शन ए. अर्लियर इट वॉज नॉट जीएमए. देयर वर 30 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ 12th लेवल, 5 फ्रॉम फिजिक्स ऑफ 12th लेवल, ऑफ केमिस्ट्री 12th लेवल, बायोलॉजी 12th लेवल एंड जियोग्राफी रेयर अर्थ मटेरियल साइंस 12th लेवल. 5 क्वेश्चन यहां के आया करते थे. सो वी हैव टू हायर फैकल्टी फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स. देयर वाज अ वेरी गुड फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, वेरी गुड फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, नो डाउट. बट लाइक मी थोड़ा सा हाथ तंग था अंग्रेजी में, और वो पढ़ा रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी बढ़ते. एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग, बच्चे हंस के लोटपोट थे सीरियसली. ही सेड दैट दिस इलेक्ट्रॉन एंड ही वांट्स टू गो देयर. बच्चे कहते ही वांट्स टू गो देयर. एंड there are students who has done good in chemistry, they might have physics and chemistry at the BSc level as well, and they understand. So okay sir, still sir he wants to go there. When there is a problem of electron, whether it is energy or material, you are fixing gender as well. So sometimes students they are smart enough to answer. हमारे यहाँ कोई भी फैकल्टी ना आपको बच्चा समझ के आएगा ना तो उसका बैंड बजेगा. आप लोग बहुत स्मार्ट हो. अगर आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अपनी पे आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो। द प्रॉब्लम वी हैव टू गिव यू रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू, कि आप अपनी रिस्पेक्ट करो, मेरी करो ना करो। दैट मीन्स यू हैव टू रेज योर बार योर सेल्फ ना, उस लेवल में बात करनी है। हमें मौका मिला हम कुछ भी पूछ सकते हैं सर से। अब हमारा काम है हम बैठ के रिसर्च करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर ना। आप जो मर्जी आप लेके आओ ना, जहां से फील होता है ना सर हमें ये पढ़ना है, वो मेरा काम है डिस्कस करूं। आई कैन अवॉइड इन द क्लास बिकॉज इट मे हार्म द अदर्स एज वेल, सिलेबस एज वेल, बट आई कैन नॉट से नो, आई विल नॉट टेल यू। अपना काम करेंगे, करके लेके आएंगे। सो बी वेरी क्लियर ओवर, जो एग्जाम्पल दे रहा था, बी वेरी क्लियर ओवर डेमोन्स्ट्रेशन, ओवर लैंग्वेज, योर फर्स्ट सेंटेंस। आई सेड व्हाट इज FTER, रिकॉल योर सेल्फ, frame nicely, sir, FTER says, but then standard statement, every equivalence relation defines a partition of a set and conversely. That is standard statement which you need to deliver. Clear? Next यहां ये हो गया। अभी मैंने लिखा था class of 0. Look at here now. 0, m, 2m, minus 2m, minus 3m and so on. They all when divided by m, what is remainder? 0. What is class of 1? All those which leave the remainder when divided by 1. Because if I divide 1 by m, what is remainder? 1. 1 को अगर m से divide remainder 1 ही आएगा ना। इसी क्लास में कौन आएगा? Which are congruent. If a number wants to be congruent to 1, it should leave remainder 1 only. तो क्या करते हैं, इसी में समय 1 ऐड कर दें। एक मिसिंग कहां से? माइनस एम, मैंने एक मिसिंग दिख रहा है। माइनस m प्लस 1, 0, m प्लस 1, 2m प्लस 1 एंड सो ऑन। ये 1 इसमें भी तो ऐड करेंगे। हाँ, इफ आई डिवाइड एनी ऑफ दिस बाय m, रिमाइंडर 0, बट नाउ इफ आई डिवाइड एनी ऑफ दिस बाय m, व्हाट इज रिमाइंडर? सब में 1 ऐड कर दिया, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा सब में। सो दे ऑल आर सिंपली क्लास ऑफ 2 इज व्हाट? 2m plus 2, 2m plus 2 and so on, minus m plus 2, minus 2m plus 2, minus 3m plus 2 and so on. Confirm? So this is how we form class. Suppose m equal to 3, then classes will be class of 0, 0, 3, 6, minus 3, minus 6. Class of 1, 4, 7, minus 2, minus 5. Class of 1 and class of 2, 2, 5, 8, minus 1, minus 4 and so on. Class of 3, again 3 is here. So class of 3 will be same as class of 0. So class of 3 is class of 0. Class of 4 is class of 1 and so on. So how many classes there are? Only 3. Class of 0, class of 1 and class of 2. There will be as many classes as the possibility for remainder. If I divide any number by 3, there are only 3 possibility for remainder: 0, 1 and 2. One class which will give you remainder 0, one class which gives remainder 1 and another 2. है ना? So by congruous modulo m, how many classes? Exactly m. One class of 0, one class of 1, one class up to m minus 1. यही तो होगा ना। इसमें कोई इश्यू आ रहा है? थोड़ा क्लीन होके समझ लीजिए इसको, बहुत फंडामेंटली है, हम डिफिकल्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? सरकास्टिक नहीं है, ऑनेस्टली कह रहा हूं। आपको ना टफ होना होगा, पढ़ाएंगे तो फंडामेंटल से वहां तक लेके जाएंगे, बट मन की आंखों से कहने का मतलब था मेरा। हाँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा आइडिया आया। जो आप ZM पढ़ते हो ना, ZMUN, ना पढ़ा होगा बचपन में ग्रुप में,
है ना, ZM UN ग्रुप, ZM ग्रुप स्पेशली एडिशन मॉडुलो M, ZM ग्रुप, वो ग्रुप ऑफ दीज क्लासेस ही होता है. दीज आर कॉल्ड रेसिड्यू क्लासेस एंड हेंस इन्हें बोलते हैं. नाउ इसके बाद क्या करते हैं ना, नाउ Z बाई M ऐसे बना देते हैं एंड इट इज व्हाट 0 और ऐसे लिखते हैं मतलब क्लास ऑफ के 1 और M-1 ऐसे, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ M-1 या ऐसे भी लिख देते हैं. ये नोटेशंस हैं, इसी को आगे लोग ना ZM बोल देते हैं ये. और जब कंफ्यूजन नहीं हो ना तो ये बार भी हटा देते हैं. जब कंफ्यूजन नहीं है तो बार भी हटा देते हैं. ठीक है, कंफर्म ना, बट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. सो कॉल्ड द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस. रेसिड्यू माने रिमाइंडर. ईच क्लास रिप्रेजेंट this is class of those integers which give remainder 0 when divided by M. This is set of those integers which give remainder 1. ठीक है, if two numbers are congruent to each other, they give you same remainder when divided by separately. अगर कहीं लिखा मिल जाए, I don't know whether it's correct or not, ये जो लिख रहा हूं 1 7 3 4 1 5 7 8 9 कुछ और 3 पावर 100 1 गंदा सा. इफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉडुलो 173, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस आई डिवाइड दिस. नहीं, इफ आई डिवाइड दिस रिमाइंडर शुड बी सेम इफ आई डिवाइड 23. व्हेन वी डिवाइड 23 by 173, what is रिमाइंडर 23. So this number will give remainder 23 for sure. But पहले ये सही तो हो. But if anyhow I get such kind of congruence equation, then it is easy to find remainder by dividing the smaller one. छोटे वाले को डिवाइड करके ढूंढने ज्यादा अच्छा नहीं है. And when you are interested in remainder only, always you should divide the smaller congruent. आप ढूंढने की कोशिश करो ना, अब दिखाते हैं आपको कैसे ढूंढते हैं. याद, कोई दिक्कत नहीं. लिखिए एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू दिस कांग्रेस मॉडुलो. इसके छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, वो देखिए. एप्लीकेशंस एक चीज समझिए, अगर m x को डिवाइड कर रहा है, इफ m डिवाइड x, देन m डिवाइड k इंटू x फॉर एनी k, फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे. ट्रू. सो इफ a is congruent to b modulo m, this is suppose given, that means what? m divides a minus b. So m divide a minus b into some k. So this implies 1 a to a into k minus b. ak is congruent to bk modulo m for k belong to z. ये क्या है? m divides a minus b into k. ट्रू है कि नहीं है? I can multiply by k both side. 2 a plus k is congruent to b plus k modulo m. देख लो ये भी ट्रू है कि नहीं है? m divide this minus this, k से k कैंसिल, तो अपने आप वो ट्रू हो गया. थर्ड, a to the power n is congruent to b to the power n modulo m. n belong to नेचुरल नंबर. यहां नेचुरल नंबर, नहीं तो -1 लगा दो 1/2 टाइप का हो जाएगा वो, है ना? ट्रू. और ये भी ट्रू है. क्यों? इसको डिवाइड करना चाहता है अगर m, इफ दिस वांट्स टू बी ट्रू, देन m should divide 8 power n minus b power n, which is equal to a minus b into k.
and m divides a minus b, that is given. So m divides a minus b into k, that means it divides this. So if this is true, this. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. This is true. Remember, this implies this. This doesn't imply this. ये इसको imply कर रहा है, ये इसको imply नहीं कर रहा है ना? नहीं तो आप देखो ना कि 3 square is congruent to 2 square modulo 5 होता है ना? अब हाँ, तो यहां से वापस नहीं जाना है, वहां से यहां आना है. This implies this. This doesn't imply this. क्लियर? इसका फायदा ये हो रहा है, जैसे मैंने अभी पहले कहा आपसे ना, कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर व्हेन आई डिवाइड अ नंबर बाय सम अनदर नंबर, किसी बड़े नंबर को मुझे डिवाइड करना है किसी दूसरे नंबर से, वो बड़ा नंबर है, एंड माई इंटरेस्ट इज इन रिमाइंडर, व्हाट आई ट्राई टू फाइंड सम स्मॉलर नंबर विच इज कॉन्ग्रुएंट. तो इस छोटे वाले डिवाइड में काम चल जाएगा, बिकॉज दे गिव द सेम रिमाइंडर. हाउ टू फाइंड स्मॉलर कॉन्ग्रुएंट, दिस में बी हेल्पफुल. मैं एक छोटा कॉन्ग्रुएंट उठाऊंगा और ये करते करते बड़े करते चला जाऊंगा, शायद वो मिल जाए. आई विल शो हाउ वी गेट द सच नंबर्स. एंड दिस इज फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. दिस सेज इफ A is congruent to B modulo M, C is congruent to D modulo M, means we have two congruents by same modulo, then we can add. Okay. And fifth, हाँ जी, कोई डाउट? इफ px equal to a naught plus a1 x alpha naught plus alpha 1 x and so on, alpha kx power k, where alpha I belongs to z integers, ठीक है, then p of a is congruent to p of b modulo m. कोई पॉलिनोमियल ले लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल, ये तब भी रहेंगे कॉन्ग्रुएंट. दिस इज इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन ये था ना कि कैसे वो, जो मैंने कहा अगर वो सही हो तो, जो नंबर मिला है ना, तो कोई छोटे नंबर ढूंढ लिए अपने. फॉर एग्जाम्पल, यू Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.